So dear students, today we are going to discuss about another part of speech. As we have already discussed the types, we should say that parts of speech that were noun, pronoun, adjective, adverb, and right now we are going to discuss another part, that is conjunction. The very first thing that comes to our mind when we are talking about conjunction, we should say that it is a word that joins together. The very first thing is that, but what does it join? The other questions comes to mind. So after thinking about the first thing, we should go towards another point, another thing, that is it joins words. Sometimes it joins words, sometimes it joins phrases, and sometimes it joins clauses. Mean there are two separate sentences, but when they are joined together in a single sentence, they would turn to be clauses. So it can join words, it can join phrases, it can join clauses. And examples are given here. God made the country and man made the town. Here we can see that these are two clauses that are joined together with the help of conjunction, a joining word. So whenever we say about, whenever we think about conjunction, it means that conjunction is a joining word, right? So in the first sentence, two clauses are joined. In the next sentence, once again, our hoard is little, but our hearts are great. So our hoard mean our conservation, mean कि हमारा जो ज़ख़ीरा है, जो हमारे पास कलेक्शन है, वो थोड़ी है, लेकिन हमारे दिल जो है वो बड़े हैं. इसमें but के थ्रू ज्वाइन किया गया. That is a conjunction. She must be or she will die. Once again हम यहाँ पे देख रहे हैं कि once again यहाँ पर टू क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन किया गया है. एंड इन द फोर्थ सेंटेंस, टू एंड टू मेक फोर. वंस अगेन यहाँ पर अब टू वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है, टू एंड टू. सो conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words. Sentences इस सेंस में हम कह रहे हैं कि टू डिफरेंट sentences होते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में था God made the country, अगर इसके आगे हम फुल स्टॉप लगा दें और नेक्स्ट सेंटेंस बना लें न्यू सेंटेंस, मैन मेड द टाउन, तो दोनों सेंटेंसेस हो जाएंगे. जब हम इनको टुगेदर ज्वाइन करेंगे तो वो ये क्लासेस बन जाएंगे. यानी एक सेंटेंस के अंदर जब ये प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड क्लासेस. बट if they are present in separation, if they are present as separate subject and predicates, mean they would turn to be sentences. So we have understood what is a conjunction in the very first part of our now first part of ours was about that. Now we are going towards the next part, that is how are conjunctions used and what type of conjunctions are there. First we should see some further examples as you are looking at your screen share. Conjunctions join together sentences and often make them more compact. यानी इनका बेसिकली पर्पस ये होता है, ये कंजक्शन जब ज्वाइन करते हैं तो उनको मोर कम्पैक्ट मीन उनको बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, टुगेदर कर देते हैं, फ्रेजेस को भी, क्लासेस को भी, और इस तरह से वी शुड से दैट के सेंटेंसेस जो सेपरेट फॉर्म में होंगे जब वो इकट्ठे आएंगे तो फिर क्लासेस की शक्ल में आ जाएंगे. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यू कैन लुक एट देम. बालो एंड विथल आर गुड बॉलर्स. ठीक है, अब यहाँ पर is a short way of saying Balo is a good bowler and Vithal is a good bowler. तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टू क्लासेस हैं बेसिकली, जो ग्रामेटिकली कम्पैक्ट फॉर्म में करके उन्होंने टू वर्ड्स को इकट्ठा करके वहाँ पे मेंशन कर दिए. द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. अब इसका ये मतलब है कि द मैन इज़ पुअर बट द मैन इज़ ऑनेस्ट, यानी दोनों तरह से ये भी टू क्लासेस होंगे. यानी इनको हम टू क्लासेस ही कंसीडर करेंगे जब यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा बट ऑनेस्ट. बट ऑनेस्ट का मतलब है कि मैन दोबारा से उसमें आ रहा है या उसमें रिपीट हो रहा है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर इनटू इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, तो डेफिनेटली हम इनको टू क्लासेस में कंसीडर करेंगे. वर्ड्स ओनली. अब यहाँ पर जो है समटाइम्स, यानी नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. टू एंड टू मेक फोर. हैरी एंड रामा आर ब्रदर्स. ठीक है, हैरी एंड रामा केम होम टुगेदर. सच सेंटेंसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू टू सेंटेंसेस. तो ऊपर वाले जो पार्ट्स थे वो हमारे पास दो सेंटेंसेस थे, उनको हमने इकट्ठा एक में किया था, लेकिन यहाँ पर ये वी शुड से दैट कि हम इनको
सेपरेट सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। ऊपर वाले में क्लासेस थे बेसिकली, एक सेंटेंस के अंदर होंगे तो वो क्लासेस होंगे, लेकिन जब हम उनको सेपरेट करके सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑफकोर्स वो सेंटेंसेस कहलाएंगे, फिर वो नहीं बनेंगे, राइट। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंसेस हैं और एक सेंटेंस के अंदर मौजूद है, राइट। जब एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट क्लास बनेगा, इसी तरह से एक सब्जेक्ट और एक और प्रेडिकेट क्लास बनेगा, तो वो फिर एक सेंटेंस के अंदर क्लासेस बन जाएंगी। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने उनको रिलेटिव क्लासेस से किस तरह से सेपरेट करना है। रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट हो रहे हैं डेफिनेटली वो रिलेटिव क्लासेस भी कहलाते हैं, यानी वो क्लास जो होता है। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन से उनको किस तरह सेपरेट करना है। यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब दैट यहाँ पर जो है वो क्या है, रिलेटिव, हम ये कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो है हाउस की तरफ रेफर कर रहा है, यहाँ पर ये कंजंक्शन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू टू क्लॉजेस ज्वाइन हो रहे हैं। दिस इज यानी एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर। अब इसके अंदर भी टू वी शुड से दैट के क्लॉजेस प्रेजेंट हैं, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब है यहाँ पर, वेयर ही वाज मर्डर। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। टेक दिस एंड गिव दैट। अब यहाँ पे ये कंजक्शन है, यानी हमने यूज देखना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजक्शन है। तो वर्ड कोई भी जो होता है वो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी सिंगल वर्ड जो है वो आइसोलेशन में कुछ भी नहीं होता। जब हम उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई वर्ड ग्रामेटिकली जब भी हम कोई वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो इन आइसोलेशन, इन सेपरेशन, इन लोनलीनेस, दैट इज़ नथिंग। उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वर्ड क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, बताया कि आप, अगर हम देखें कि यू आर अ बॉय, तो आप एक यू आर अ बॉय ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन अब जब आप घर में मौजूद होते हैं, व्हेन यू आर प्रेजेंट एट योर होम, तो इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप के लिए बेटा है, मीन यू आर अ सन। जब आप कॉन्टेक्स्ट में, यानी अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं अपनी फैमिली में, तो देयर यू आर अ ब्रदर, राइट। तो जैसे जैसे, यानी वर्ड वही होता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होगा उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम चेंज होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। सो इज़ द केस विद द वर्ड्स। जब वर्ड्स सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं तो सम टाइम सेम वर्ड होता है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज़ होगा तो वो डिसाइड होगा कि वो किस सेंस में यूज़ होगा या क्या उसका स्टेटस होगा, राइट। तो आपने ये पॉइंट जो है, जब भी ग्रामर के कोई भी चीज़ आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि वर्ड्स इन आइसोलेशन मीन्स नथिंग when they are used in we should say that in combination, in gathering, then they make their sense, then they make their status, अपना वो status उस वक्त क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ कंजक्शंस जो होते हैं वो इसमें यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, आइदर, आर, नाइदर, नार, बोथ, एंड, दो, येट, ठीक है। और करंट इंग्लिश में यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि करंट इंग्लिश में ये बहुत कम यूज़ होते हैं, दो यूज़ करते हैं, उसके साथ आगे येट लगाने की ज़रूरत नहीं होती करंट इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में येट ज़रूरी नहीं है, वैसे ही आप यूज़ कर सकते। दो हिज, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, दो हिज सफरिंग मच पेन, ठीक है, येट ही डज नॉट कंप्लेन, तो येट लगाने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, जस्ट वो कह देते हैं ही डजंट कंप्लेन, तो दैट इज एनफ। वेदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये यानी ये वो कंजक्शंस हैं जो पेयर के फॉर्म में यूज होते हैं और इनके लिए एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी या सेपरेट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव या कोरिलेटिव कंजक्शंस इनको कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स के फ्रेज के फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनको कंपाउंड कंजक्शंस हम कहते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लुक एट देम इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये बहुत सारे कॉमन फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट दे आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस, राइट। ये भी हमने देख लेने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यानी हम क्लासेस ऑफ कंजक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर हमारा टॉपिक है
कि कंजक्शंस को किस तरह से किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हमारे यहाँ जो कंजक्शंस हैं उनको टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और दूसरी को कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो वी शुड से दैट कि इस तरह से क्लासेस को जब ज्वाइन करते हैं, ऑफ कोर्स वो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट इफ़ दे आर ज्वाइनिंग क्लासेस टुगेदर, इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि वो जो क्लासेस होते हैं दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और उन क्लासेस को हम सेपरेट सेंटेंसेस के तौर पर भी लिख सकते हैं, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं हम उनको इस तरह से डिफाइन करेंगे, दे ज्वाइन टुगेदर क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक्स, यानी वो इस तरह के क्लासेस होते हैं कि वो इक्वल रैंक के होते हैं और उनको हम सेपरेट, वी शुड से दैट इन सेपरेट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उसमें चीफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर, नाइदर, नॉर। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है आइदर और आर दोनों पेयर की फॉर्म में होंगे, इसी तरह से नाइदर और नॉर वो भी पेयर की फॉर्म में होंगे, मीन इकट्ठे हम यूज़ करेंगे, अलहदा नहीं यूज़ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक में ये डिस्कस किया था कि नाइदर और आइदर अगर अकेले यूज़ होते हैं यानी सिंगल फॉर्म वर्ड में यूज़ होते हैं तो वो प्रोनाउन की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं नाइदर ऑफ देम इज़ लायर, तो ये नाइदर ऑफ देम जब हम यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ प्रोनाउन, यानी हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आइदर और यानी पेयर की फॉर्म में, और नाइदर और नॉर पेयर के फॉर्म में, तो देन दे विल बी कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे, राइट। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर आइदर और नाइदर अकेले यूज़ हुए हैं तो ऑफकोर्स वो प्रोनाउन है, बट अगर वो या इवन समटाइम एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं अगर वो एग्जैक्टली बिफोर नाउन यूज़ हुए हैं। जैसे मैं आपके एक एग्जांपल इसको भी दे देता हूँ, आइदर बॉय इज़ लायर, जब आइदर बॉय हम कहेंगे तो ऑफकोर्स आइदर जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब हम ये कहेंगे आइदर ऑफ द बॉयज़ या आइदर ऑफ देम, तो देन इट विल टर्न टू बी एन अ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और फिर जब हम इनको पेयर की शक्ल में आइदर और आर और नाइदर और नॉर इकट्ठे यूज करेंगे तो देन दे विल टर्न टू बी कंजक्शंस, राइट, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनको फर्दर कुछ सब कैटेगरीज में क्लासेस में डिवाइड किया गया। समटाइम्स एग्जाम्स में आपसे ये इनकी टाइप्स भी पूछ लेते हैं, फर्दर सब क्लासेस यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की फर्दर क्लासेस। तो वो फर्दर क्लासेस उसकी कौन कौन सी हैं? कम्युलेटिव और कपुलेटिव कहते हैं। इनका बेसिक पर्पस यानी आपने उनका पर्पस देखना है कि वो करते क्या हैं। कम्युलेटिव या कपुलेटिव, जैसा कि वर्ड्स शो कर रहा है, कम्युलेटिव मीन कम्युलेशन, मीन के इकट्ठा करना, टुगेदर करना। जब मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वाइट इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इवन फिजिक्स वाले भी। तो कम्युलेटिव का मतलब है उनको जस्ट इकट्ठा करना, टुगेदर करना, यानी ऐसे कंजक्शन जो कि सिर्फ टू क्लासेस को या वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, दे आर कॉल्ड कम्युलेटिव और कपुलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, वी कार्व्ड नॉट अ लाइन, यानी हमने एक लाइन भी नहीं लगाई, एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन, और हमने एक स्टोन भी, मतलब हमने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर एंड जो है दोनों को कंबाइन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, दैट इज जस्ट जॉइनिंग द टू क्लासेस एंड they are joined into a single sentence, right? So cumulative conjunctions are those coordinating conjunctions which only join the two clauses or sometime words. Adversative, ये भी नाम से शो हो रहा है। एडवर्सेटिव का मतलब होता है यानी एक चीज़ कहकर उसके अपोज करने के लिए दूसरी चीज़। एडवर्सेटिव एडवर्सरी से लफ्ज़ निकला है, मतलब अपोनेंट, अपोज करना, यानी ऐसे क्लासेस जो ना कि सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं उन दोनों को बल्कि उनमें एक अपोजिंग जो सेंस है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। ही इज स्लो, जैसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कंट्रास्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं बिटवीन द टू क्लासेस। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, यानी वो स्लो है लेकिन श्योर है, यकीनी है कि वो पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, यानी अनॉयड था बट फिर भी उसने क्वाइट यानी खामोश रहा, पुरसकून रहा। खामोश भी होता है इसका मतलब, और दूसरा पुरसकून के मीनिंग में भी। आई वुड सम सॉरी आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, यानी ओनली का वर्ड है, ये भी इसी तरह से। ही वॉज ऑल राइट, ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड,
तो ये भी इसी तरह से, यानी अब दूसरी जो इसमें सब कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जो सेकंड सब कैटेगरी या हम सेकंड क्लास कहेंगे, दैट मीन्स फॉर not only joining the classes but it also creates some sort of opposing sense या एक कंट्रास्ट भी उन दोनों क्लासेस के दरमियान क्रिएट कर रहा है। उसके बाद है डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव, नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी अगर हम उनकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस कर लें, सिर्फ नाम के ऊपर फोकस कर लें, तो उससे आइडिया हो सकता है कि ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मीन अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ उनको ज्वाइन करते हैं बल्कि टू फैक्ट्स में से एक फैक्ट की तरफ अल्टरनेट, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर सामने आते हैं, चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। शी मस्ट बी, शी विल डाई, ये हमने सेंटेंस पहले भी डिस्कस किया, यानी दोनों में से चॉइस है। इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ आते हैं, आइदर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस, और वंस अगेन नाइदर नॉर, और इसी तरह से आइदर आर, और एल्स का वर्ड भी यहाँ पर यूज किया गया। दे टॉयल नॉट, यानी वो मेहनत नहीं करते, नाइदर डू दे स्पिन, ना वो कुछ घुमाते हैं ना वो मूव करते हैं। मतलब यहाँ पर भी इसी तरह से अल्टरनेट है एक दूसरे के, एक को दूसरे के साथ अल्टरनेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। वॉक क्विकली, अब जैसे ये लास्ट सेंटेंस है, ये बहुत गुड एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड। वॉक क्विकली, तेजी से चलें, एल्स यू विल नॉट ओवरटेकिंग, या फिर आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकेंगे। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, सब क्लास है इलेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, उसके आगे रीजन एक्सप्लेनेशन बनना, यानी ये सिर्फ ना ज्वाइन करते हैं बल्कि नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो पहले वाले की एक तरह से उसकी रीजन या उसकी एक्सप्लेनेशन भी बन रहा होता है। समथिंग सर्टेनली फेल इन, कुछ चीज़ गिरी है, फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश, क्योंकि मैंने एक स्प्लैश की आवाज़ सुनी। नो स्प्लैश कहते हैं वो पानी में कोई चीज़ जो गिरती है तो उसकी जो आवाज़ क्रिएट होती है। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि प्लेग जो है वो रैपिडली स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक और पॉइंट भी किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सम टाइम ओमिट भी कर सकते हैं, यानी उनको ओमिट करके आप उनकी जगह कॉमा, सेमी कॉलन या कॉलन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अवर टॉपिक राइट नाउ। हम इसको बाद में किसी टॉपिक में देखेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये दूसरी क्लास है, यानी जो हमारे पास कंजक्शंस आ रहे हैं उनकी जो मेन क्लास है। नेक्स्ट क्लास आ रही है हमारे पास, टाइप आ रही है कंजक्शंस की, नेक्स्ट क्लास आ रही है। तो इसमें ऐसे कंजक्शंस इंक्लूडेड हैं जो जब टू क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, ये हमेशा क्लासेस को ही ज्वाइन करेंगे ऑफ कोर्स, और वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो वी कैन से दैट के उसमें उनको भी ज्वाइन करते हैं, यानी वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जितने भी कंजक्शंस हैं वो सब हमेशा क्लासेस को ही ज्वाइन करेंगे, और वो इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि एक क्लास दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी दोनों क्लासेस इक्वल रैंक के या मेन इंपॉर्टेंस के इक्वल लेवल के नहीं होते, बल्कि एक क्लास जो होगा वो मेन क्लास कहलाएगा और दूसरा क्लास जो होगा वो उसका डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा, और दूसरा क्लास जो है वो डेफिनेटली वो वाला क्लास होगा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ऐसा क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा, बेशक वो ऑर्डर में सेंटेंस में पहले आ जाए, वो वाला क्लास जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, या बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कंजक्शन जो जो कंजक्शन, यानी जिस कंजक्शन से जो स्टार्ट होगा, मीन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें, वो वाला क्लास उसका क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा, उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। तो दूसरा क्लास जो है वो मेन क्लास कहलाएगा। अब इसमें ये होता है कि जो मेन क्लास है वो हम सेपरेट उसको जाकर लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा क्लास होगा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है उसको हम सेपरेट या अकेला या इन आइसोलेशन नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो वो मीनिंग फुल कन्वे नहीं करेगा, बल्कि वो डिपेंड कर रहा होता है पहले वाले क्लास के ऊपर जो मेन क्लास होगा। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जो ऐसे टू क्लासेस को ज्वाइन करता है जो इक्वल इंपॉर्टेंस के या इक्वल लेवल के नहीं है, और उनमें से एक क्लास जो है वो मेन क्लास कहलाएगा और दूसरा उसका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा, या मेन क्लास को हम मेजर क्लास भी कह सकते हैं। और जो क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा वो अंडरस्टूड है कि वो सबऑर्डिनेट क्लास या उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास कहलाते हैं,
कहते हैं उसको, और वो हमेशा पहले वाले मेन क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, और मेन क्लास को हम सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास को हम सेपरेट अकेले नहीं लिख सकते, क्योंकि वो मीनिंग के लिए अपने दूसरे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इसमें ऑलमोस्ट कॉर्नेटिक कंजक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास कंजक्शन है वो सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, before, unless, and, as, when, where, while, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा भी अगर सेंटेंसेस में नीचे कुछ यूज हो रहे हैं तो वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में इंक्लूडेड है। आफ्टर द शावर वॉज ओवर, द सन शोन आउट अगेन। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आफ्टर जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। आफ्टर द शावर वॉज ओवर, ये एक क्लास है। तो अब ये क्लास जो है ये मेन क्लास नहीं कहलाएगा, ये मेन क्लास इसका दूसरे वाला कहलाएगा। दैट इज द सन शोन आउट अगेन। द सन शोन आउट अगेन, इसको हम स्टार्टिंग में पहले भी लिख सकते हैं। द सन शोन आउट अगेन आफ्टर द शावर वॉज ओवर, राइट। इस तरह से भी यह सेंटेंस लिखा जा सकता है, बट इसके ऑर्डर से ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सबऑर्डिनेट है या ये सबऑर्डिनेट है। हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास वो होगा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेन क्लास है द सन शोन आउट अगेन, इसको हम अकेला अलहदा भी लिख सकते हैं, ये अपना मीनिंग फुल कन्वे कर रहा है। दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। द सन शोन आउट अगेन अकेला लिख दें सेंटेंस के तौर पर, मीनिंग कन्वे कर रहा है। बट इफ आई राइट द रिमेनिंग द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द शावर वॉज ओवर, तो ये फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। आफ्टर द शावर वॉज ओवर, व्हाट आफ्टर, तो ये क्वेश्चनिंग कर रहा है कि इससे पहले क्या, यानी क्या था इससे पहले। तो जब तक वो दूसरा मेन पार्ट इसके साथ नहीं लगाएंगे, द सन शोन आउट अगेन, ये मीनिंग कन्वे फुल नहीं करेगा। ये डिपेंड कर रहा है बिकॉज इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है क्लास, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सो यू शुड कीप इन माइंड अ बुक, a book is a book although there is nothing in it। तो यहाँ पर भी इसी तरह से as he was not there I spoke to his brother, I spoke to his brother मेन क्लास है, as he was not there ये उसका डिपेंडेंट क्लास है, यानी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या सबऑर्डिनेट क्लास। इसी तरह से he ran away because he was afraid, he ran away मेन क्लास है। यानी आप इनका ऑर्डर जो है डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लास से कोई क्लास आप स्टार्ट करें, आप सेंटेंस स्टार्ट करें, तो उसमें कोशिश करें कि जहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लास खत्म होता है, यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक कॉमा प्लेस कर दें और नेक्स्ट मेन क्लास फिर लिखें। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। टेक हिट एयर इट बी टू लेट, ठीक है, यानी इससे पहले कि ये लेट हो जाए। और एक्सेप्ट, वी शुड से दैट एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये रेपेंट, ये से मुराद है यू रेपेंट, मीन के जब आप रिपेंट करते हैं यानी पछताते हैं या उस पर तौबा करते हैं, यू शैल ऑल लाइकवाइज पेरिश, नहीं तो तुम तबाह हो जाओ। तो ये सारे जो है आप देख लें, ये इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ये तमाम जितने भी इसमें सेंटेंस में अनलेस, व्हेन, व्हेंस, व्हेंस ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, इसी तरह से ये भी ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता। टिल और अनटिल दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। टिल में डबल एल आएगा, लेकिन जब हम अनटिल कहेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, सिंगल एल के साथ यूज होगा, राइट। वी आर गोइंग टू स्टॉप इट राइट नाउ। और अब हमारा ये ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म करने लगे।